हाँ जी पुੱਤਰ, let us continue with the derivatives। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ cos ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਆਲ ਦੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ +2 ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ cos x। ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਲਿਖੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ y ਹੈ equal to f of x, if I say ਕਿ differentiate y with respect to x, symbolically ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ differentiate ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ with respect to which function x। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ sort of d by dx ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ with respect to x of what, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ of y with respect to x, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ with respect to x differentiate करो तो basically we are doing this। so दोनों पासे we are differentiating with respect to x आ। so ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dy by dx ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ symbolically fx ਦੀ differentiation ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, f dash x ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ differentiate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ dy by dx, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ f dash x, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ y1 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ y ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ y1, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ y ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆ y ਡੈਸ਼ ਜਾਂ f ਡੈਸ਼ ਜਾਂ dy by dx ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। तो आ सिंबल याद रखो, dy by dx हो गया, अगर fx लिखा है तो f डैश x हो गया, ठीक है। ये y ਨੂੰ y डैश भी कहता, ठीक ਤੇ ਜਾਂ y1 कहता, तो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ d by dx of sin x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ sin x ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ cos x ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, that is equal to cos x, ਠੀਕ ਹੈ, f dash x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਛਿਓਂ ਦੇ ਛਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। sin ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ cos, cos ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, tan x ਦੀ secant ਸਕੁਆਇਰ, secant x ਦੀ secant x tan x, and cosecant x ਦੀ ਮਾਈਨਸ cosecant x cot x, cot x ਦੀ ਮਾਈਨਸ cosecant ਸਕੁਆਇਰ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਲਮੋਸਟ 50 to 60% ਤੁਹਾਡੀ +2 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ 50% ਆਫ ਯੋਰ +2, ਰਾਈਟ। +1 ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। तो इस करके ये पढ़ने हैं हैगे आसान ही याद करने, ठीक है, और सो दैट अपन अगे कंफर्टेबल आप रहिए, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूलेस। सो चेते होने चाहिए छेओं दे छेओं स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, और ਜਿਹੜੇ C ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, cos ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, cot ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। तो ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7वां 8वां 9वां 10वां ਤੇ 11वां, ठीक है। अच्छा आ वाला डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़्ड पावर n, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ठीक है, ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ठीक है। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, नीचे x ਦੀ टर्म है, ऊपर n आ, अगर n इज सम कांस्टेंट लिख लो h। कांस्टेंट का मतलब इतने कोई x ਤੇ y ਦੀ टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिदा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कਹਾਂ कि y इक्वल टू x रेज़्ड पावर 2020, ठीक है।
सो डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स या y डैश इक्वल टू, हाँ जी n हो गया, फॉर्मूला किया n इंटू एक्स दी पावर n माइनस वन, 2020 माइनस वन, ठीक है, दैट इज 2019। इज दैट क्लियर? तो इत्थे कोई भी कांस्टेंट होगा विच डज नॉट कंटेन एक्स वाई, राइट। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਰੇਸਟ ਪਰ x, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ y ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਨਾ x ਇੰਟੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ n, x ਰੇਸਟ ਪਰ n 'ਚ ਕੀ ਹੈ n ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ वन, ਸੋ x ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ वन, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ n ਵਾਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਨੀਚੇ x है ऊपर कांस्टेंट है, राइट। आ भी गलत है, जिवें 2 ਦੀ पावर x है, ठीक है। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ y डैश इक्वल टू है ना, ਇਹਨੂੰ नीचे ਲਿਆ ਕੇ x इंटू 2 ਦੀ पावर x माइनस वन, ਇਹ ਵੀ गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ पावर फार्मूला, पावर फार्मूले 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ वंस अगेन नीचे x ਆ और ऊपर कांस्टेंट आ, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, नीचे कांस्टेंट ऊपर x, दैट इज एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला, तो ए भी गलत है, ठीक है। सो ए तो हो गया आ, आई गेस क्लियर। बाकी एन कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर लाइक नेगेटिव भी हो सकता है, जिवें आ देखो 1 बाय एक्स रेस्ट पर 7, बस इन्ना ख्याल करना है। हुण फार्मूला च की है एक्स न्यूमिनेटर च है, ठीक है। सो नीचे होवे तो ऊपर लै जाओ एक्स की पावर -7 है ना। हुण साडा एन आ हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज एन, नीचे ला लो, into x the power n minus 1, so that is -7 into x the power -8 या -7 by x the power 8, ठीक है। सो अगर नीचे होवे तो उन्होंने ਆਪਾਂ ऊपर ले जाएंगे, राइट। सो दिस इज सो 7वें ते 9वें कन्फ्यूजन ना होवे। 7वें नीचे x ऊपर कांस्टेंट, e रेस्ट पर x की डिफरेंशिएशन तो e रेस्ट पर x होंदी है, वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। एंड अगर नीचे कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऊपर x है जिवें आ, then this is exponential फंक्शन ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ। तो ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ a रेस्ट पर x ਦੀ a रेस्ट पर x इंटू log है। तो ਜੇ ਨੀਚੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ x ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਣਾ, ठीक है। सो ਅੱਜ ਮੈਂ एग्जांपल ਲੈ ਲਓ, मैं ਕਹਾਂ 2 रेस्ट पर x, so therefore dy by dx would be, हाँ जी a रेस्ट पर x ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ सच लिखिਆ इंटू log ऑफ ਜਿਹੜਾ नीचे है, राइट। सो 2 रेस्ट पर x ਤੇ 2 रेस्ट पर x इंटू log 2। अच्छा ln ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बेस e है, और ਇੱਥੇ ना लिखण ਦਾ मतलब भी की है बेस e है, तो भावें ln2 लिख दो भावें log 2 लिख दो, राइट। या होर एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू 3 रेस्ट पर x बाय, ठीक है, इफ यू सी दैट इज नथिंग बट 3 बाय 4 रेस्ट पर x, ठीक है। ए तो कुछ भी रियल नंबर है तो आ पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो ए रेस्ट पर x का की होगा ए रेस्ट पर x, आ ए हो गया, पहला एवं लिख दो इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो अगेन 7वें 9वें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या एक और आ ले लो 1 बाय 2 रेस्ट पर x, ठीक है। कैन यू राइट दिस एज 1 बाय 2 होल रेस्ट पर x, बिकॉज 1 दी पावर x तो 1 ही आ जाना, ठीक है। एंड आ 2 दी पावर x आ गया, सो आ थोड़ा a हो गया। सो डी वाई बाय डी एक्स इज a रेस्ट पर x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। और log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x भी ड्राइव्ड, और इतने log x लिखा तो बेस e है, ठीक है। मतलब कला एवं भी लिखा होगा ना log x बेस e है था, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय x। और अगर बेस e ना होवे, ठीक है, जिदा आ देखो अगर बेस e ना होवे लाइक log x मतलब कुछ बेस a है, तो फॉर्मूला की है 1 बाय x log a, इन्हों आप 1 मिनट ड्राइव कर सकते हैं। सो log x बेस a नू log च असीं पढ़ांगे या दैट इज log x बाय log a लिखते हैं, ठीक है। दैट इज अ कांस्टेंट, log x बेस a इज log x बाय log a। हुण log a ते कांस्टेंट है, हुण ये तो एक नंबर है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इन्हों जस्ट थिंक अबाउट दैट
कि आ कॉन्सटेंट अगे रहन दो, अगे पिया रहन दो है ना, मान लो 1/log 3 1/log 4 तो नंबर एक इंटू log x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ log x ਦੀ 1/x, ਸੋ ਆ ਗਿਆ 1/x log, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ log x ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲਾ ਬੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ log x base pi is dy by dx पूछा, that is 1/log pi and 1/x, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा एक चीज़ याद रखियो कि फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। मैं वट आई मीन टू से जब तुसी इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਆ ਸਾਈਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ cos x ਬਣਾਈ ਸੀ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पूरा तुसी एक क्वेश्चन सॉल्व किया सी, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ला के तुसी पूरा डराइव किया सी। तो अगर मैं कਹਾਂ कि साइन एक्स की डिफरेंसीएशन जी है, हाँ वेट, साइन एक्स की डिफरेंसीएशन अगर cos x है पुत्र, तो अगर मैं कहदा कि साइन 2x की डिफरेंसीएशन कितनी है, तो वो cos 2x नहीं है, बिकॉज ਇੱਥੇ अगर तुसी चेंज कर दोगे, तुसी ਉਹਨੂੰ फर्स्ट प्रिंसिपल ना करियो, ਇਹਦੀ डिफरेंसीएशन cos 2x नहीं आएगी, ठीक है। लिमिट फर्क पै जाएगा ना, 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो मतलब आंसर ये नहीं आएगा। तो अगर बिल्कुल साइन x है तो cos x लिखना है, x के अंदर थोड़ा जिहा भी चेंज करता, ठीक है, तो आप डायरैक्टली आंसर नहीं लिखना, ठीक है। मान लो मैं होर एग्जांपल देना, मैं कहा साइन ऑफ x स्क्वायर ਇਹਦੀ डिफरेंसीएशन करो, तो अगर तुसी आ करती दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो अगर x की बजाय कोई होर फंक्शन हो जाए, ठीक है, वो थोड़ा +2 का पहला टॉपिक है, उन्होंने असी करते हैं चेन रूल ना, थोड़ा जिहा मैं ये एंड ते भी दस दांगा, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। वो की है कि x के जगह कोई होर फंक्शन रखी जाए, साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ साइन x एटसैट्रा, वो फिर दैन वी गो बाय चेन रूल, ठीक है। बट एक बार मैं ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ, they are derived, you did those as well, कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरी लिमिट इवैल्यूएट करके ਇੱਥੇ तक आए हैं। इस करके cos x की डिफरेंसीएशन माइनस साइन x है, cos ऑफ x की बजाय कुछ होर रख के फिर ਇੱਥੇ कर दे, वो सही नहीं है। ਈਵਨ पता ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, what you do, ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਓ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾय फर्स्ट प्रिंसीपल, ठीक है, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਿਓ, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ गलत करे ਇੱਦਾਂ जस्ट ਇੱਦਾਂ ही फार्मूला ला दे कि सर y डैश इज इक्वल टू cos ऑफ 3x, वो तो मैं ऑलरेडी किया गलत है। यू विल सी कि ਇਹਦਾ आंसर आऊगा 3 cos 3x से मैच कर लेना, ठीक है। सो ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ कि x, हालांकि +1 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ x ही होगा, कभी वो पूछेगा नहीं, बट ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा +2 का बेस भी दसदा है कि ਉਹ 'ਚ जे x की बजाय कुछ होर होवे, we are going to go for chain rule, right? ओके, तो ये थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए बेटे, याद होने चाहिए है ना। तो एडिशनल एक दो अगेन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन +1, बट लिख लो कि अगर मॉड x है डी बाई डी एक्स, मॉड x की डिफरेंसीएशन होती है, लिख लो x बाय मॉड x या मॉड x बाय x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मोर डिनोमिनेटर चाहिए। तो ये मैं क्विकली अगर तुम दसा कितों आया, मॉड एक्स का ग्राफ है, ये सिर्फ तो दस रहा है कि तुम +2 तक फॉर्मूला याद हो जाए आते आते, ठीक है। सो वाई इक्वल टू लेट्स से मॉड एक्स, रिमेंबर इदा का ग्राफ होंगे, और एक्स जब पॉजिटिव है ना सज्जे पासे, तो मॉड सेम खुल जाता है, तो इस लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, 0 के पिछे एक्स नैगेटिव है, मॉड खुलेगा -x, एंड यू नो डी वाई बाई डी एक्स के पुत्र स्लोप होंगी है। तो इस लाइन की स्लोप एट एनी पॉइंट कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1, तो 0 के बाद डी वाई बाई डी एक्स 1 आना चाहिए, और 0 के पिछे डी वाई बाई डी एक्स -1 आना चाहिए। सो इन्हों कोई भी देख लो, तो 0 के बाद आ मॉड की खुलूगा सेम है ना, पॉजिटिव ही सेम आ जाएगा, तो कितना आ गया x बाई एक्स, आंसर आ गया 1। तो 0 के बाद डी वाई बाई डी एक्स 1 है, 0 के पिछे मॉड -x खुलेगा, सो -x बाई एक्स या x बाय -x,
आंसर -1 आ गया। सो dy/dx 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ -1 ਹੈ, तो बिल्कुल ठीक है। और 0 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ +2 ਜਾਨੇਗਾ 0 ਤੇ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इतने डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, y एटसेट्रा दैट इन +2। सो आ फॉर्मूला हो गया था। एक अभी लिख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x द डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 0 फिर x इज़ नॉट इंटीजर। वो भी तुसी ग्राफ तो देख सकते हो, इंटीजर x का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ना, क्योंकि आ नंबर या तो 0 होएगा या 1 होएगा या 2 होएगा। इंटीजर तो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ग्राफ टुटिया तो डिफरेंशिएशन होनी नहीं है, इसे करके आ लिखे। अदरवाइज कितने भी रहोगे स्लोप हमेशा 0 है, ठीक है। सो dy/dx विल बी 0 एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। बट चलो लेट्स स्टक टू द रेलेवेंट पार्ट। तो आ फॉर्मूले थानू याद हो गए। नंबर 2 रूल्स एक बार फिर लिख लीए, लास्ट क्लास में डराइव किए सी, बट लेट मी राइट डाउन वंस अगेन। पहला रूल की सी पुत्र कि इफ y इज इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट, मतलब ऑर्डर वाइज नहीं है जिदा पहला लिखे सी, बट हुण ऑर्डर वाइज एक लिख लें कि dy/dx इज 0 कांस्टेंट है तो वही डिफरेंशिएशन 0 है ना, और कांस्टेंट का मतलब एक्स वाई नहीं इनवॉल्व होना चाहिए, राइट। जिदा हुण मैं एक कल भी एग्जाम्पल दी सी, मैं फिर मैं कहां कि y इक्वल टू 3 dy/dx इज 0, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट ही है, एक्स के चेंज होना वाई च कोई फर्क ही नहीं पैना, तो रेट चेंज विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई का 0 है। या मैं आ कहना वाई इक्वल टू यू नो साइन अल्फा वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, तो देयरफॉर एक्स के नाल तो ये चेंज ही नहीं करेगा, dy/dx इज 0। सो यह कुछ भी नंबर लिखा हो जिस एक्स वाई नहीं है तो दैट इज कांस्टेंट फॉर एक्स, राइट। सो सेकंड y इक्वल टू k इंटू लेट्स से y1 या fx ले लो, k इंटू fx, हाँ जी, डिफरेंशिएशन कितनी होगी dy/dx कांस्टेंट नु पिया रहन दो, fx दी f', ठीक है। थर्ड सम डिफरेंस है y इक्वल टू y1 प्लस y2, दैन हाँ जी dy/dx इज हाँ जी पहले दी डिफरेंशिएशन प्लस दूजे दी, सो भावें तो एवें लिख दो, ठीक है, dy/dx, या एवें लिख दो कि dy/dx इज हाँ जी y1 का डेरिवेटिव प्लस y2 का डेरिवेटिव, और अगर पुत्र विच माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सो दो फंक्शन ऐड होए या दो तो ज़्यादा है तो चलता रहूगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन तुसी प्लस है तो प्लस कर देनी है, साइन दे नाल माइनस है माइनस, ठीक है। चौथा किया सी प्रोडक्ट रूल कि y इज इक्वल टू लेट्स से fx इंटू gx, दैन डिफरेंशिएशन से dy/dx या y'(x) हाँ जी पहला फंक्शन एक फंक्शन है सच, दूजे दी डिफरेंशिएशन। इत्थे हुण मैं भावें g'(x) लिखदा, भावें मैं dg/dx लिखदा, तुहाडी मर्जी, gx एज सच f दी डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एंड देन वी हैड डिवीजन, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, dy/dx, let me use different symbols, is equal to denominator the square, denominator as such into differentiation of numerator minus numerator as such differentiation of denominator। ये थोड़े रूल्स हो गए है ना, बिकॉज कोई भी एक्सप्रेशन होगी ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो छेवां लिख लो कि ਜਿਹੜੇ फॉर्मूले है मतलब वेरिएबल चेंज करना, फॉर्मूले नहीं चेंज हो जाते। वट आई मीन टू से, मतलब अगर मैं कਹਾਂ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो अगर मैं कਹਾਂ डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पैक्ट टू x, तो आ जिहड़ा x आ सज्जे पासे अगर उहदे फंक्शन है दैन वी कैन से दैट इज f'(x), ठीक है ना। ये मैं की कहना चाह रहा, अगर मैं लिखा होवे कि लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, हुण जरूरी नहीं बेटे y और x ही लिखेगा, ठीक है। और इतने y की जगह उन्हें अल्फा अगर देता, x की जगह बीटा, तो अगर वो मैंने कहे डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पैक्ट टू बीटा, ठीक है, हुण डिफरेंशिएट एस वेरिएबल रिस्पैक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले थोड़ी बदल जाने। अगर मैं लिखा हो y इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैंने क्या हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, दैन आई वुड से dy/dx।
तो आ वेरिएबल इधर है तो ਇਹਦੇ रिस्पेक्ट साइन एक्स की कितनी हो जाएगी cos एक्स। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि डिफ्रेंशिएट दिस, क्या है ऑन है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है, देयरफॉर डी अल्फा बाय डी बीटा इज, हाँ जी, साइन बीटा की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा cos बीटा। ठीक है, तो इस करके इदा नहीं है कि फॉर्मूले भावें ड्राइव वाई और एक्स किए वेरीएबल चेंज कर दे, अगर विद रिस्पेक्ट टू ने सेम किया है वाला जो वेरीएबल तो फॉर्मूले थोड़े सेम रहने, राइट। आई होप यू गैट द आइडिया, है ना। जिदा हूँ मैं कਹਾਂ ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, मैं कਹਾਂ डी वी बाय डी टी, हूँ ये नहीं ना कहूँगे सर सानू तो फॉर्मूले एक्स वाले पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ही दो, मैं तो यही करना है। ठीक है, मतलब डी वी बाय डी टी मतलब ना होने कहता है कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेरिएबल आई है डी वी बाई डी टी, टी स्क्वेयर दी सॉर्ट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाला ना पावर फॉर्मूला लग गया, दैट इज 2 टाइम, ठीक है, टी इंटू दी पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2t आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। सो आई गेस इनफ सेड। सतवां भी एक लिख लो कि हाँ, छवा लिखा था, सेवंथ लिख लो कि अच्छा रिवर्स है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स रिवर्स लिख देना है, और ठीक है एफ डैश एक्स अगर कभी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डेरिवेटिव अगर ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। मतलब अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम दिता है वह डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया तो यदा मतलब वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होएगा। दैट्स प्रीटी ईजी कि अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है मतलब स्लोप हमेशा ज़ीरो है, स्लोप हमेशा ज़ीरो कद होएगी तो गिवन डोमेन के अंदर इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट। तो अगर तुहानू पता लगे ना कि डी वाई डी एक्स इज ज़ीरो तो कह दो कि यस वाई इज़ कॉन्स्टेंट, या एफ डैश एक्स इज ज़ीरो, यस एफ एक्स सम कॉन्स्टेंट। ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जो किसी एक्स की जी वैल्यू होएगी हरेक एक्स की सेम वैल्यू होएगी क्योंकि वो की है कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सो ये दिमाग च रखियो। चलो एवं करते हैं, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, लेट अस बिगिन। ओके, जिदा हाँ क्वेश्चन है बेटे, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं ले रहा, और लास्ट वीडियो मैं थोड़े थोड़े कराते सी, राइट। तो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ देखो की कहता है कि y इक्वल टू दिस। नाउ यू गाइस कैन थिंक इन टर्म्स के या तो इन्हू मल्टीप्लाई कर लिया ना, प्रोडक्ट रूल ला दिया पहला दूजा, या वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्योंकि देखो एच भी एक्स दी टर्म्स है, ये भी एक्स दी टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई करके तुसी 4 टर्म बना सकते हो, फिर पावर फॉर्मूला ला सकते हो। सो दैट एवें ट्राई करते हैं। चलो एक्स इनू ए हाँ जी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, हाँ जी एक्स बाय रूट एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स रूट एक्स। समझे गल बेटे। अच्छा जी हुण तो सानू पता ना एक्स दी टर्म्स सिंपलीफाई हो जानी सारियां, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी, आ हाफ पावर है 1 है, तो आ कि एक्स की पावर 3/2, एक्स दी पावर च आ गया, आ 1 है, नीचे 1/2 है, इफेक्टिवली आ जाएगा एच आ जाएगा आ, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स की पावर -3/2। अच्छा अगर ऐदा कुछ होंदा कि लाइक एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, मतलब कुछ होर फंक्शन होंदा, मान लो 1/x माइनस कॉस एक्स, फिर मल्टीप्लाई करन दा मतलब बहुता फायदा नहीं सी होना, फिर आपां प्रोडक्ट रूल लांदे क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स आना सी ना, ये तक सारियां टर्म्स एक्स दियां सीगियां, सानू पता कि असी पावर फार्मूला एंड च बन जूगा तां इदां कर लिया, नहीं तो प्रोडक्ट रूल ना भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके, हुण डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट। और सब्जेक्टिव च ना एक आदत पाई दी है कि हुण मैं डिफरेंशिएट करना ना, यू मस्ट राइट डाउन दैट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ਇਹਦਾ नंबर कट जाते जे क्योंकि +2 बोर्ड च जे ना लिखो, है ना, तो मेक श्योर सब्जेक्टिवली यू शुड राइट। सो वाई डैश इज, हाँ जी इतने हुण पावर फार्मूला लग गया, एक्स रेस्ट पर एन द डिफरेंशिएशन इज एन इंटू एक्स की पावर n-1, इतने एन आया, ठीक है, ये आ, सो एन आ गया जाना इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है, आगे आ गया n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है, और फिर तुसी पावर सिंपलीफाई करके लिख लो, ठीक है, नक ते तुसी कर सकते हो। यू गॉट इट, ओके। तो ओके लेट्स सी नाउ सेकंड, इतने लेट अस
ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ a cos x ਬਾਈ sin x cot ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ sin x ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ b sin x by sin x plus c by sin x ठीक है now we have all the standard cos by sin cot plus b constant आ गया 1 by sin cosecant ठीक है पुत्र ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ known ਹੈ so dy by dx again you need to write that ਕਿ differentiate with respect to x ਹਾਂਜੀ a ਹੁਣ constant ਨਾਲ multiply ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ cot x ਦੀ minus cosecant square x b constant है ਉਹਦੀ 0 cosecant x ਦੀ minus cosecant x into cot x constant प्यारा भी cosecant x की differentiation minus cosecant x into cot x right so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ easy ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ you know so many ways ਜਾਂ ਤੇ प्रोडक्ट रूल तो बैटर है पहला मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि कलियां x ਦੀਆਂ टर्म्स है ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ नहीं तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डिवीजन रूल भी ला सकते हैं सो मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस राइट तो हाँ जी मल्टीप्लाई कर लो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस x माइनस 2 ठीक है बाई एक्स स्क्वायर सारे ने डिवाइड कर दो और ये हम खुद करियो पावर फार्मूला बन गया 4 है ना माइनस 2x प्लस x की पावर माइनस 1 2x की पावर माइनस 2 ठीक है चारे के चारे पावर फार्मूले ना हो जाने ठीक है now let's see okay now y equal to this dy by dx so differentiate okay ਹੁਣ 2 मल्टीप्लाई होया कोई प्रॉब्लम नहीं 2 into secant x दी differentiation secant x into tan x 3 ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ cot x ਦੀ minus cosecant square x हाँ क्वेश्चन मैं जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ठीक है अदरवाइज that's okay minus 4 tan x दी secant square x right minus 4 ऑलरेडी पे कल खत्म ठीक है पुत्र ओके y equal to अच्छा a0 a1 a2 आ सारे कांस्टेंट है राइट dy by dx is हाँ जी आते कांस्टेंट पे आ रहूगा x रेस्ट पर n दी n into x दी पावर n minus 1 ठीक है a1 पे आ रहूगा x रेस्ट पर n minus 1 दी जो पावर है नीचे आ जाएगी n minus 1 अच्छा जी ये नहीं वहम होना चाहिए कि सर n ही है तो n minus 1 है तो कोई नवा फॉर्मूला है बेटे x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ तो कई बार ना हो ਜਾਂਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 ਲਈ ਜਾਂਦੇ बेटे n एक इंडिकेटिव है कांस्टेंट ਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ठीक है जो भी है दैट इज इक्वल टू जो भी आगे आ जाएगा ठीक है इनटू x ਦੀ ਪਾਵਰ जो भी है ਉਹਦਾ -1 करना ठीक है चलो ओके so that is n minus 1 x the power एदा -1 so n minus 2 a2 अगे पे आ रहने दो अगे आ पूरा नीचे ले x the power n minus 2 minus 1 n minus 3 ऐसे डॉट 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 लास्ट ए अच्छा अभी अगर कला लिखे ना कांस्टेंट इनटू x k x the differentiation is k राइट या ते दो तीन तरीके से समझन दे या तो पावर फॉर्मूला ला दो k इंटू एक्स की पावर 1 सो dy बाई डी एक्स कितना होएगा पावर फॉर्मूला ना हाँ जी 1 इंटू अगे आ गया 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1 हो गया ठीक है सो dy बाई डी एक्स के हो गया या होर तरीका समझने का यू नो दूजा ग्राफ व्यू पॉइंट y इक्वल टू एम एक्स की होंदा है इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m ठीक है यदि स्लोप लाइन दी k है जिवें इत्थे k गिवन therefore dy by dx is k ठीक है हर एक पॉइंट ते किते भी पॉइंट ते लाइन ते तुसीं देखोगे दैट स्लोप इज सेम दैट इज k
ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू एक्स पे तो कांस्टेंट ही आ जाएगा प्लस ए एन कला कांस्टेंट पे होना बेचारा कला ही इन्हें शहीद हो जाना ए जीरो हो गया। ठीक है, सो आ हो गया पुत्र। ओके लेट्स सी। ओके log the property I guess you know log of x raised to power n ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ is n log x। ठीक है, मतलब आते you should know every time log of a into b is log a plus log b and a by b the log a minus log b and log of some x raised to power n is n log x। ठीक है, तो लेट्स क्योंकि log x स्टैंडर्ड है ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ है। सो log of 1 by अंडर रूट एक्स कितना हो गया x की पावर 1/2 दैट इज log of हाँ जी इन्हू ऊपर ले जाओ x रेस्ट पर माइनस हाफ। ठीक है, हम पावर जी है बेटे ये अगे आ जाएगी दैट इज माइनस हाफ log x। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज माइनस हाफ log x। तो आप पहला ना सारी एक्सप्रैशन में सिंपलीफाइड लिख लिए दैट इज माइनस हाफ वाई हुई है हाले राइट log x 5 इंटू एक्स की पावर a। ठीक है, 3 into a the power x। अच्छा what does that mean? x the power 2/3 6 time x the power minus 3/4। ठीक है, now let us differentiate with respect to x। so dy by dx is constant ਇਹਦੇ ਨਾਲ multiply ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ log x ਦੀ differentiation 1/x x raised per constant हाँ जी की formula है ਇਹਨੂੰ नीचे ले आओ x the power this -1 minus 3 अगे कांस्टेंट पे आ रहे हैं तो a रेस्ट पर x दी a रेस्ट पर x इंटू log a। ठीक है, आ x रेस्ट पर n वाला फार्मूला इतने एक्सपोनेंशियल सी आ पावर फार्मूला सो दैट इज n इंटू x दी पावर n -1 राइट 3 है छोटू जा तो ये भी 6 इतने पे आ n पावर फार्मूला n इंटू ठीक है x दी पावर n -1 बाकी पावर सिंपलीफाई कर लो राइट। वो कहते जी फाइंड दी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अच्छा हुण कोई भी क्वेश्चन है वो चाहे तो पूछ ले फाइंड आउट dy by dx चाहे पूछ ले फाइंड दी रेट चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x चाहे पूछ ले स्लोप ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x तो हरेक बार करना कि आपां dy by dx। ठीक है, सो फाइंड दी स्लोप ऑफ टेंजेंट ਇਹਦਾ मतलब डिफरेंशिएट करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज f डैश x। हाँ जी कितना आ गया 2 इंटू कॉन्स्टेंट प्यार आ गया यदि 6 इंटू एक्स दी पावर 5 एक्स दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब 1 दी -1 दी 0 फिर कहना आ कर्व ते स्लोप चाहिए एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, सो लास्ट वीडियो भी गल हुई सी हुण डिफरेंशिएट तुसीं कर लिया ये तुहाडे कोल जो भी ये ग्राफ है ना कर्व तुहाडे कोल जनरल स्लोप आ गई किसी पॉइंट ते जिहड़े पॉइंट ते चाहिए ओहदी एक्सपोर्ट करी जाओ बट सानू कितने कह रहा एट एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक्स इक्वल टू 1 ते ग्राफ ते जो टेंजेंट है ਉਹਦੀ स्लोप पुछदा है। अच्छा ਉਹਦਾ मतलब की है कि डिफरेंशिएट कर लिया ਇਹਦੇ ਚ x इक्वल टू 1 पुट करना तो f डैश x ਦੇ अंदर x इक्वल टू 1 पुट करना मतलब ਇੱਥੇ x1 रखना दैट इज f डैश 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ਇੱਥੇ x1 रख दो दैट इज 12 1 ਦੀ पावर 5 1 प्लस 4 ठीक है 1 दैट इज 16। सो ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू 1 ਤੇ ग्राफ ਤੇ ਜਿਹੜਾ टेंजेंट है वो 16 स्लोप का होगा। ठीक है, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझो बेटे एंड यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट एज वेल कि अगर मैं कहा लेट्स से एक सिंपल जी एग्जांपल ले लीजिए सो दैट तुहानू समझ आया चंगी तरह मैं कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है राइट तो अगर मैं कहा वट इज़ एफ डैश टू जो मैं ऊपर समझाया इसका मतलब की है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2 या डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका की है पहला तो एफ डैश एक्स कर लो लिख लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका की है पहला तुसी फंक्शन नू जनरल डिफरेंशिएट कर लिया दैट इज 3x² फिर जिहड़े पॉइंट ते सानू डेरिवेटिव या स्लोप चाहिए है वो पुट कर दो सो लेट अस पुट x इक्वल टू 2 देयरफॉर f डैश 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 12। सो
मतलब पहला एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਸਲੋਪ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਏ ਲਿਖ ਲਓ ਜਨਰਲ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਏ इज इक्वल टू वट, पहला एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, then put that is x equal to a. now you must be wondering सर ये तुसी 4 बार ऑलरेडी दस चुके हो, ठीक है। नवी चीज़ की है ए कि कई बार बच्चे गलती कर जाते, जिवें मैं सपोज कहां कि मतलब जे मैं ना दसिया होंदा ना तो हो सकता तुसी भी गलती कर जाते कि हुण मैं कहां वट इज़ f2, f2 की हो गया एच एक्स की वैल्यू 2 पुट करती दैट इज़ 8। f2 की है पुत्र कि इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, x इक्वल टू 2 ते y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू 8 है। तो जब तुसी इत्थे x की वैल्यू पुट ही करती, हुण f2 8 एक कॉन्सटेंट है। कई बार गलती नाल बच्चे की करते, अगर मैं एवें कहां बेटे इनू डिफरेंशिएट करो, वो f2 की डिफरेंशिएशन f डैश 2 लिख देंगे, फिर 0 कह देंगे, कहेंगे सर 2 ते f2 की डिफरेंशिएशन f डैश 2 नहीं है। f डैश 2 की है एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, फिर एक्स इक्वल टू 2 पुट करना है। ये तो तुसी पहला 2 पुट करके डिफरेंशिएट कर दिया, तो f2 का डेरिवेटिव f डैश 2 नहीं है, f2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो लिख लो कि कांस्टेंट जब पुट करता, कोई नंबर पुट करता बेटे, वो तो कांस्टेंट आ गया, वो डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 आनी। सो अगर मैं कहां इज दैट क्लियर, सो मेक श्योर कि जब कांस्टेंट तुसी कोई वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पुट कर ही दिता है तो उन्होंने डिफरेंशिएट करके एफ डैश ए नहीं आना। एफ डैश ए कितना आना, पहला डिफरेंशिएट करो तो फिर हाँ जी एक्स की वैल्यू पुट करो। तो ये भी हुण पता लग गया कि जब भी आप किसी फंक्शन एफ एक्स के अंदर इत्थे कोई एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर कॉन्सटेंट पुट करती, दैन दिस इज़ अ कॉन्सटेंट, ठीक है। जिवें मैं एग्जाम्पल लै सी ना कि x2 पुट किया तो एक कॉन्सटेंट है, अगर ये कॉन्सटेंट है। इज इट क्लियर? सो आ चीज़ क्लीयर होनी बड़ी जरूरी है। जिदा हुण अगर इन्ना लिखा ही है तो जिदा मैं आ कहां कि आ डिफरेंशिएशन दसो, मैं कहां कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 3 इंटू साइन एक्स प्लस, मतलब कोई भी फंक्शन है तुसी कांस्टेंट पुट करता वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जो मैं इनू मैं कंटिन्यू करदा, पहला मैं कहां कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 एफ डबल डैश 2। अच्छा डबल डैश का होंगे कि एक बार फिर तो डिफरेंशिएट करो, हायर वाला डेरिवेटिव होंगे आप प्लस टू करांगे, बट जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग। तो हम एफ डबल डैश 2 का मतलब पता कि पहला 2 बार डिफरेंशिएट करो फिर 2 पुट करो, ठीक है। एंड यू नो कि जब एफ डबल डैश एक्स भी एक फंक्शन आया होएगा, जब 2 पुट कर ही दिता है, दिस विल बी सर्टेनली ए कॉन्सटेंट, ये कोई सोचने की लोड़ नहीं है। भावें 1000 बार डिफरेंशिएट करा ले, जब वैल्यू पुट करती बेटे फंक्शन थोड़ी रहा, तो उस फंक्शन से उस पॉइंट तो वैल्यू आ गई, तो कॉन्सटेंट ही आनी है, ठीक है। हम मैं एफ डबल डैश 2 पूछा तो वो इन्ना पक्का एक कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है, पहले एफ डैश एक्स कर लो, दैट इज 4x क्यूब, ठीक है। एक बार फिर तो डिफरेंशिएट करता है एफ डबल डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। हुण 2 पुट करता, द मोमेंट एफ डबल डैश इतने 2 पुट किया, हाँ जी 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 12 टाइम 4 तुहाडे को आंसर आ गया 48। सो दैट इज अ कांस्टेंट। सो एफ ऑफ सम नंबर होवे, एफ डैश सम नंबर होवे, एफ डबल डैश, सो जब कांस्टेंट पुट हो गया, कोई फिक्स रियल नंबर पुट हो गया, तो फंक्शन च दी वैल्यू भी कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है। सो जिदा हम कहा कि जी ऑफ जी डैश 5 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 10, मैं कहूँ फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। नाउ कोई बॉन्डलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आते साढ़े वास्ते कांस्टेंट है, मैं हुणी समझाई सारी कहानी। F3 दे कांस्टेंट जिवें ना अगे 2 3 4 है कोई नंबर है, जी डैश 5 भी एक कांस्टेंट है, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज, हाँ जी कांस्टेंट पिया रहने दो, F3 पिया रहने दो, यदि टर्म च आंसर आ जाएगा, सानू की प्रॉब्लम है। तो साइन एक्स दी कॉस एक्स, जी डैश 5 पिया रहने दो, ठीक है, एंड एक्स दी पावर 10 दी डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स दी पावर 9, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। इन्हू देख के घबराना नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू फंक्शन पुट होगी दैट इज ए कांस्टेंट, राइट, ये याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हुण मैं आ क्वेश्चन कर दिया, कहता एफ एक्स इज लैमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, ठीक है। तो लैमडा तो म्यू कांस्टेंट है, कई इनू म्याऊ म्याऊ कहते रहते बेटे, म्यू होंदा है, ठीक है, म्याऊ नहीं होंदा।
ठीक है, प्लस 12। अच्छा हुण गिवन की है f-4, मतलब पहला डिफरेंशिएट करो, फिर 4 ते स्लोप 15 एंड f-2 is 11। pretty simple because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਮਿਊ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਮਿਊ दो वेरिएबल है, तो ਇਹਦਾ मतलब दो इक्वेशनां बन जान। तो लेट अस डिफरेंशिएट। कितना हो गया 2 लैमडा पे आ रहे हैं तो x स्क्वायर दी 2x, हाँ जी, प्लस म्यू x दी म्यू 12 दी 0। नाउ f-4 इज देयरफॉर f-4, हाँ जी, हुण x4 पुट कर, ठीक है। सारा बेटे विस्तार से तां समझाया भी किते गलती ना तुसी कदी भी करो, राइट। तो f-4, हाँ जी, इतने 4 पुट कर दो, कितना आ गया 8 लैमडा प्लस म्यू, that is f-4, that has value 15, so we have first equation। and f-2, हाँ जी, इतने 2 पुट कर दो, that is 4 lambda plus mu, that has value 11। तो आई गेस दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं एवं दिंदा, मान लो थोड़ा चेंज करदा कि इफ आई वुड हैव गिवन के f of 2 है ना, हुण मैं कहां f of 2 is 11, हुण दसो, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ मतलब पहला तुहानू देता उन्हें f-4, तो पहला f(x) पता है, f-x कढ़ लिया सी ना, f-x कढ़ के 4 पुट करता, एक इक्वेशन तो इत्थों आ गई। हुण f of 2 क्या है, तो मतलब सीधी वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन की वैल्यू 2 थे, हाँ जी, 2 स्क्वायर 4 लैमडा प्लस 2 म्यू प्लस 12, ठीक है। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, वी कैन सॉल्व एंड गेट लैमडा म्यू, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, आ देखो, कहता दिस इज द फंक्शन f(x) is this, prove that f-1 मतलब 1 ते डेरिवेटिव दी वैल्यू इज इक्वल टू 100 f-0, तो मतलब आप f-x कैलकुलेट करके 1 ते 0 पुट करना। सो लेट अस डिफरेंशिएट। नाउ एक ही है पुत्र 1/100 पे आगे इनटू x दी पावर 100, तो बेसिकली कांस्टेंट अगे पे उन्होंने प्या रहन तो x दी पावर 100 x दी पावर 19 9 इन्हां सारियां दी डिफरेंशिएशन हो जानी, दैट इज 1/100 इंटू x रेज़ पर 100 दी 100 इंटू x रेज़ पर 99 प्लस हाँ जी आ 99 1/99 पे है, दैट इज 99 x दी पावर 98, ठीक है। अगे 98 पे होगा, ठीक है, वो चाहेगा 98 x दी पावर 97। इदां ही करते करते एक दिन तुम इत्थे पहुंचोगे। हाँ जी, ये कितना आ गया हाफ x स्क्वायर दी 2x एंड x दी 1 1 दी 0, ठीक है। हुण सिंपलीफाई कर लो, आ गया, ठीक है, 2 गया। सो व्हाट वी हैव f-x इक्वल टू, अच्छा उल्टा लिख लो, एक तो लैके, हाँ जी, 1 जमा x, फिर कितना आएगा, देखो x दी पावर्स आ रही हैं, x दी पावर, फिर x स्क्वायर x क्यूब, करते करते x दी पावर 97 x दी पावर 98 x दी पावर 99, मतलब रिवर्स करके लिख लिया, राइट। हुण f-1 कैलकुलेट कर लो। नाउ f-1 1 1 1 पुट कर दो, तो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो लैके 99 तक ते आह गिणती बच गई सीधी, एक आ वाली टर्म है, तो 1 पुट कराया, ਇਹਦਾ मतलब एक तो लैके 99 बार 1 इत्थे आएगा, है ना, और एक आ वाला तो 100 बार आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। एंड व्हाट इज f-0, f-0 0 पुट करा दो, सारा उड़ जाना, वो वैल्यू 1 आ गई। सो देयरफॉर क्लियरली f-1 लैफ्ट हैंड साइड कितनी है 100, राइट हैंड साइड कितनी है, f-0 की वैल्यू 1 है, वो भी 100 है। सो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ओके, नाउ let's do these होना प्रोडक्ट फार्मूला। अगेन दो तरह कर सकते, या तो स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करके पावर फार्मूला ला दो, या प्रोडक्ट रूल ला दो, ठीक है। सो लेट्स, बिकॉज हले +2 तक पहुँचोगे ना, फिर चेन रूल ना कर सकते हैं, बट हले आप x दी पावर n सीखा, x की जगह कुछ होर हो फिर नहीं, तो इस करके इनू सिंपलीफाई करिए। सो c² x² प्लस d² प्लस 2cdx, ठीक है। नाउ या तो प्रोडक्ट रूल ला दो पुत्र, या पावर मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स प्रेफर प्रोडक्ट रूल। y डैश इज इक्वल टू,
पहला फंक्शन एज सच, दूजे दी डिफरेंशिएशन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर प्लस 2c dx द डेरिवेटिव है ना। यू कुड हैव डायरेक्टली डिफरेंशिएट बट आई ऑलवेज प्रेफर के क्योंकि अगे अगे +2 च आ कॉम्पलैक्स भी हो सकता है, तो आदत पाओ कि पहला रूल लिखो और रूल लिखने के बाद डिफरेंशिएशन करो। छोटा फंक्शन है कोई बिल्कुल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक छोटा है, उन्होंने तुम सीधा भी कर सकते हो। सो पहला फंक्शन एज, दूजे का डेरिवेटिव और अभी सही इधर लिखे प्लस दूजा एज सच, ठीक है, 2c dx ए एक्स प्लस बी द डेरिवेटिव। नाउ सेकेंड स्टैप ते फिर डिफरेंशिएट कर दो है ना। हाँ जी, हुण एदी पूरे दी डिफरेंशिएशन चाहुंदा, एदी डिफरेंस मतलब सम है ना, सम च की होंदा पहले दी डिफरेंशिएशन, एदी की होएगी पुत्तर, एदे च कांस्टेंट अगे पिया रहिंदा एक्स स्क्वायर दी 2x प्लस दूजे दी 0, इस ते x है ही नहीं, 2d नहीं कर देना, बार बार मैं कह रहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, डी स्क्वायर साडे वास्ते कांस्टेंट है, 2cd भी कांस्टेंट है, सो आ सारा साडे वास्ते कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू x दी दैट कांस्टेंट प्लस 2cd प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2c dx। हाँ जी, ए एक्स प्लस बी दी डिफरेंशिएशन सम आ गया, ए एक्स दी ए बी दी 0, ठीक है। अच्छा, ये ना थोड़े प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, मतलब मोर ओवर क्योंकि सो दैट +2 तक आंदे आंदे तुसीं फ्लो बन जाए इदां, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ +1 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, +2 ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੂਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ x ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। So let us apply division rule. This is the numerator, this is denominator, so dy by dx is denominator the square, denominator as such, into differentiation of, ठीक है, qx plus r दी, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करन नूं ते मैं इत्थे लिख ही सकदा सी 2px plus q है ना, बट मैं नहीं लिखिया, क्यों, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फॉलो जिदा मैं कर रहा सो दैट गलती ना होवे, राइट। माइनस, हाँ जी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, इंटू ए एक्स प्लस बी द डेरिवेटिव, राइट द रूल फर्स्ट। हाँ जी, ए एक्स प्लस बी, हाँ जी, होने दी डिफरेंशिएशन सम है ना तिना फंक्शन का, पहले दी डिफरेंशिएशन, हाँ जी, कांस्टेंट पिया रहा तो एक्स स्क्वायर दी 2x, क्यू एक्स दी क्यू, आर दी 0, माइनस दिस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए एक्स दी ए बी दी 0, ठीक है, डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इतने तक छड़ देना बेटे, कई लोग ना बड़ा इंजॉय करते बस मल्टीप्लाई करोगे है ना, पता नहीं टीचर ने 10 चों 20 नंबर देने 2ap(x²), पता नहीं की शांति मिलती उन्होंने, ब्रैकेटां खुली जाएंगे या मल्टीप्लाई हो, बेटे उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट लीव इट देयर, मतलब ए स्क्वायर खोल दोगे, थोड़ा जो कुछ प्रूव करने क्या है तो फिर सेंस बनती है, जब तक नहीं किया तो इनू ऐदा ही छड़ दो, ठीक है। यू नो तुम कर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करी जाओगे अननैसेसरली, लोड़ नहीं होंगी बेटे, और मन चलन दिया होंगे भी शायद टीचर नंबर दे दे, राइट। अच्छा, एक फार्मूला होर लिख लो, मैं उत्थे वो लिस्ट च ऐड कर लो, राइट, मैंने उत्थे लिखाना मैंने याद नहीं रहा, लिख लो कि अगर प्रोडक्ट रूल लिख लो, जनरल प्रोडक्ट रूल, मतलब असीं ते कीता दो फंक्शन का प्रोडक्ट ना, अगर इदां ही 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो जिवें इत्थे ना 3 होण 4 होण 5 होण, तो पहला मैं तिना लिए ड्राइव करा देना, मान लो आ लिखा y1 y2 y3, ठीक है। पहला तुसीं फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं ड्राइव कर देना dy by dx, पहला फंक्शन की डिफरेंशिएशन, दूजा तीजा एज सच, फिर मतलब जब पहले नू कीता दूजे तीजा एज सच, फिर दूजे नू कर दो पहला तीजा एज सच, फिर तीजे नू कर दो पहला दूजा एज सच, ठीक है। आ फॉर्मूला
ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਮਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 3 ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ n ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ y1 y2 y3 y4, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ dy by dx ਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, y1 into y2 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਐਜ ਸੱਚ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ y3 ਐਜ ਸੱਚ, y3 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਐਜ ਸੱਚ। ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਸਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो प्रोडक्ट रूल ला दो, कितना हो गया y1 एज सच y2 दी डिफरेंशिएशन, y2 एज सच y1 दी, y2 एज सच आना है। ठीक है, y2 एज सच y1 दी डिफरेंशिएशन, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ y3 ਨਾਲ ਪਿਆ ਪਲੱਸ y1 y2 y3 ਡੈਸ਼। ਨਾਓ y3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, y1 y2 ਡੈਸ਼ y3, y1 ਡੈਸ਼ y2 y3, y1 y2 y3 डैश। ठीक है, आई गेस दैट इज द फॉर्मूला। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ nobody will be asking ਐਡਾ ਲੰਬਾ, ਬਟ 3 ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਅਪਲਾਈ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ dy by dx is ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ मैं स्टैप बचाने लिए एवं कर रहा। पहले की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 2x, बाकी दोनों एज सच sin x, you should have written one more step right into log x, फिर पहला तीजा एज सच x square into log x एज सच sin दी cos x। ठीक है, फिर पहला दूजा एज सच log x दी 1/x। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल जनरल राइट। दिस इज गुड वन, इंपॉर्टेंट है, सुनो गल। अच्छा, पहली गल तो नज़र आ रहा है कि डिवीजन रूल लगूगा राइट। तो लेट अस राइट डाउन द रूल dy by dx इज डिनोमीनेटर दा स्क्वायर। हुण तुसीं इत्थे समझोगे क्यों मैं क्यों कह रहा सी कि आपां नूं रूल लिखना चाहिए डिनोमीनेटर एज सच। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ x cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। डिनोमिनेटर ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x sin x प्लस cos x ਦਾ डेरावेटिव। ठीक है, हुण आपां अगले स्टैप ते फिर दी डिफरेंशिएशन करांगे। सो dy बाय हाँ जी x sin x प्लस cos x। नाउ लुक एट दिस पार्ट। अच्छा, हुण इहदी डिफरेंशिएशन करनी है। इच की है, पहलां ते माइनस है, मतलब पहले दी माइनस दूजे दी। हुण पहले दी की डिफरेंशिएशन है sin x दी cos x माइनस दूजे दी। हुण दूजे दी डिफरेंशिएशन करो, उच की है प्रोडक्ट है बेटे x इंटू cos x की डिफरेंशिएशन करनी है, तो प्रोडक्ट है इत्थे, तो मतलब इत्थे इहदा प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो x इंटू cos x की डिफरेंशिएशन की होएगी, पहला फंक्शन एज सच cos x दी माइनस sin x। ठीक है, cos x एज सच x दी 1। ठीक है, आ गल समझ आनी चाहिए, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ जब डिफरेंशिएशन करन लगे विच माइनस है, तो मतलब पहले दी डिफरेंशिएशन माइनस दूजे दी करन लगे तो प्रोडक्ट रूल है, तो माइनस दूजे दी डिफरेंशिएशन। ठीक है, cos x एज सच x दी 1। ठीक है, एंड फिर x एज सच cos x दी माइनस sin x। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। माइनस अगे मैं इस करके ब्रैकेट पा ली, क्लोज की, इत्थों तक हले सॉल्व होए। ठीक है, माइनस
राइट, ये क्लियर है पुत्र। हुण sin x माइनस x cos x इंटू एदी ये हुण प्लस है दिस प्लस दिस मतलब एदी डिफरेंशिएशन हुण ए च फिर प्रोडक्ट आ गया तो इनू करिए x एज सच sin x दी cos x ठीक है एंड प्लस sin x एज सच x दी 1 फिर एदी डिफरेंशिएशन की है प्लस एदी cos x दी माइनस sin x ठीक है डिवाइड बाय यू गॉट द आइडिया। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ कैलकुलेशन मिस्टेक पक्का होती है ठीक है। और मैं फिर कह रहे थे हले मैं फिर भी छोटा देता है तो आई कुड हैव गिवन ਇੱਥੇ भी मल्टीप्लिकेशन रूल राइट तो रूल ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ मतलब ਉਹ ਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक है x sin x plus cos x the whole square ठीक है। सो dy by dx is now we can क्योंकि इतों चीज़ा कटदियाँ पईयां ना तो अब माइनस खोलोगे अब माइनस आ जाएगा इतने प्लस आ जाएगा मान के चलो ब्रैकेट उड़ाती हैं मैं आ कटिया गया ठीक है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ कटिया गया बाकी तुसी उन्होंने लिख सकते हो ठीक है। फर्दर x भी कॉमन आ जाएगा ठीक है। यू वांट चलो इन्ना जिन्ना सिंपलीफाई होंदा कर ली समझ आई गल आ ते हुण खत्म हो गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ x sin x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x cos x तो x कॉमन sin x ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ सो x sin square x plus sin x cos x ठीक है x कॉमन माइनस sin x cos x माइनस माइनस प्लस x cos square x ठीक है डिवाइड बाय x sin x plus cos x ਦਾ होल स्क्वायर इतने नज़र आ रहा है सिंपलीफाई हो रहा है तो आप ओपन अप करता हूँ आ कटिया गया और जो x कॉमन sin square x plus cos square x 1 तो कितना आ गया x square by x sin x plus cos x the whole square ठीक है। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू के फॉर्मूला पूरा लिखो और पेशेंस ना करना है ना सिंगल स्टेप ते मुकाउण दी कोशिश नहीं करनी उन्होंने राइट छोटा है तो कर दो हुण ਇਹਦੇ ਚ भी ਕਿਹੜਾ रूल लगना बेटे प्रोडक्ट रूल तो आ पहला फंक्शन है दूजा सो एक क्वेश्चन मैं लाई ता रहा तुहानू आदत पवे कि रूल लिखो तो फिर डिफरेंशिएट करो ठीक है क्योंकि अगर थोड़े कल्ले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराने हो तो NCERT है ही कुछ नहीं सवाल ही चार है चलते हैं ना तो फर्स्ट इंटू सेकेंड पहला फंक्शन एज सच ठीक है इंटू सेकेंड द डेरिवेटिव प्लस e raised पर x plus x square log x into x sin x plus cos x द डेरिवेटिव ठीक है। हुण आपां करांगे डिफरेंशिएशन दिस इज y डैश इफ दिस इज y सो y डैश इज हाँ जी पहला फंक्शन एज सच x sin x plus cos x into फिर आप डिफरेंशिएशन करन लगे तो उत्थे विच प्लस है ना पहला प्लस देखो सो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड हुण पहले दी डिफरेंशिएशन कर दो e रेस्ट पर x दी डिफरेंशिएशन e रेस्ट पर x प्लस दूजे दी डिफरेंशिएशन है ना सम रूल्स की होंदा पहले दी करो फिर दूजे दी हुण दूजे दी करन लगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लग गया ठीक है। एनी चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए पुत्र प्रोडक्ट रूल्स की होंदा कि पहला एज सच दूजे दी डिफरेंशिएशन दूजा एज सच एक्स स्क्वायर दी 2x ठीक है आ हो गया पहले दी डिफरेंशिएशन प्लस दूजे दी की प्रोडक्ट रूल प्लस ई रेस्ट पर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉज x हाँ जी फिर प्लस वाला फॉर्मूला आ गया f प्लस जी द डेरिवेटिव f दी डिफरेंशिएशन वो फिर प्रोडक्ट रूल लगी x एज सच इतने प्रोडक्ट रूल आ रहा है साइन दी कॉस साइन एज सच x दी 1 कॉस दी माइनस साइन ठीक है दैट्स इट आ थोड़ा आंसर आ गया ठीक है बेटे ओके वो कहता जी एफ एक्स आया एफ डैश 1 तो सौखा ही एफ डैश एक्स कर लो ਇਹਦਾ 0 -1 plus 2x minus 3x square plus 4x cube ठीक है एंड करते माइनस 99 x की पावर 98 100 x raised to power 99 राइट सो f dash 1 is हुण 1 पुट कर दो -1 plus 2
-3 +4 -5 है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, +6 एंड कर दे वी हैव लेट्स से -99 + 100। तो आई गेस ये सीधा ही है, उल्टा दो दो टर्म क्लब कर लो, 100 - 99। देखो ना, अगर तुम इन्हें एवं लिखो कि कट्ठियां कट्ठियां टर्म देखो ना, 100 - 99 1 आ जाएगा, फिर अगे आएगा +98 ਤੇ -97 ਉਹਦਾ ਵੀ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब अगर आप दो दो क्लब कर लीए, ठीक है, इदा तो ਉਹਦਾ आंसर 1 है। टोटल 100 आ, दो दो इकट्ठियां करांगे किन्नियां, हाँ ब्रैकेट जियां बन जानियां 50 बन जानियां। तो एक बार इत्थों आएगा, एक बार इत्थों, एंड करदे एक ऐदा आएगा, एक ऐदा है ना 4 - 3, एक ऐदा, सो 50 है ये, सो दैट इज गोइंग टू बी 50, ठीक है, डी आ जाऊगा। तो कहता y is this, dy by dx is, okay, dy by dx डिफरेंशिएट करो, आंसर ਇਹਦਾ y आ जाना। एंड ਤੁਸੀਂ लिमिट्स मैं पढ़ाना सीरीज e raised per x ਦੀ सीरीज है, राइट, बेसिकली यू विल सी दिस इज द सीरीज ऑफ e raised per x। तो e raised per x ਦੀ डिफरेंशिएशन e raised per x ही ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਤੋਂ भी आ जाएगा, देखो कितना 1 ਦੀ 0 आ ते कांस्टेंट पिया ना, पिया रहने दो, 1/1 फैक्टोरियल पिया रहेगा, x ਦੀ 1, x स्क्वायर दी 2x बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3x² बाय 3 फैक्टोरियल, फिर 4x³ बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिट। नाउ 1/1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है, चलो कर ही देने हैं। 2x 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 × 2 फैक्टोरियल, 4x³, 4 is 4 × 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्यों किया? सो दैट अपना ऊपर 2 कट जाए, ऊपर 3 कट जाए एंड सो ऑन। तो आ कटेगा, 3 ना 3 कटेगा, 4 ना 4 की आ गया 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल, x³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड दिस इज नथिंग बट y, जितों आप शुरू किया सी। therefore dy by dx is equal to y, ठीक है बेटे। हाँ जी, आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं पुत्र, की कहते हैं f5 1 है, मतलब कोई फंक्शन है, ਉਹਦੀ 5 ਤੇ वैल्यू दी है, ਉਹਦੀ 5 ਤੇ स्लोप दी है ना, या डेरिवेटिव की वैल्यू। यदि कोई g एक फंक्शन है, ਉਹਦੀ 5 ਤੇ वैल्यू ਤੇ स्लोप पता है, राइट। ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ है f, पहला पार्ट समझो की कहता है f(g'5), ਇਹਦਾ मतलब पता की है कि f × g ਨੂੰ डिफरेंशिएट करो, मतलब प्रोडक्ट वाले फंक्शन ਨੂੰ डेरिवेटिव लैके ਉਹਦੀ 5 ਤੇ स्लोप, ठीक है। सो f × g' कला लिखा होंगे, ਇਹਦਾ मतलब सिंपल डिफरेंशिएट करना है। अगर किसी पॉइंट ते डेरिवेटिव चाहिए तो इत्थे लिख देना होंगे। सो f × g इत्थे x लिखने का मतलब है उस x ते आपां डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला f × g' फंक्शन कर लिए, ठीक है। ऊपर सर्टेनली मैंशन होएगा कि f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। सो पहला डिफरेंशिएट कर लिए dy by dx, पहला फंक्शन एज सच, दूजे का डेरिवेटिव, ठीक है, एंड gx एज सच f का डेरिवेटिव। हुण ये तुसी f × g का डैश कढ़िया, ठीक है, एफ जी का डेरिवेटिव। तो किहड़े पॉइंट ते पुछदा 5 ते। सो नाउ f × g'5, मतलब एट x = 5, हाँ जी, सारे च x की वैल्यू 5 पुट कर दो, है ना। तो कितना आ गया f5 × g'5 प्लस g5 × f'5। सो f5, you guys have these values, 1 × g'5 2 है, एंड g of 5 -3 है, एंड f'5 6 है, ठीक है, दैट इज 2 - 18, दैट इज -16 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप बड़ी सिंपल। दूजे च की है, दूजा तीजा खुद करो, f/g है ना, डैश, ਇਹਦਾ मतलब पहला f/g का डेरिवेटिव ले लो, लाइक
So function ले लो fx by gx. So let us calculate f by g the derivative, that is equal to differentiation of this function, the denominator the square, denominator as such into differentiation of numerator, numerator as such differentiation of denominator. बाकी हुण f by g dash कितने चाहिए 5 थे, so simply put 5 there and value put कर लो, right? Okay, let's move to next problem. अच्छा वो कहता है कि ux एक function है which is fx into gx, right? ux is fx into gx और कहता है fg ਦੇ ग्राफ आप बनाए है, ठीक है? आ ਤੁਹਾਡਾ origin है, this is x axis, this is y. तुझे ग्राफ ही पता है तो वैल्यूज़ भी आ जाएगी तो क्योंकि ग्राफ पता है, और मोर ओवर इफ़ यू सी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और उन्हें यूनिट्स देते हैं, दिस 0 1 हो गया 2,0, ठीक है? तो दिस इज़ 0,2, दिस इज़ 2, हाँ जी 1 2 3 4 2,4 है ना, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स एज वेल. लेट्स सी पहला पुछदा की है, पुछदा है u-1. Now what is u-1? ux function दी differentiation at x equal to 1, right? तो हुण u dash x कैलकुलेट करो पहला, हाँ जी, that is equal to what? Product rule fx into g dash x plus gx into f dash x. Now u dash 1 is equal to f1 into g dash 1 plus g1 into f dash 1. ਹੁਣ f1 g1 की है, fx चलो f1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, f1 की है fx फंक्शन आ वाला ग्राफ, ठीक है? ਉਹਦੀ वैल्यू at x equal to 1, फंक्शन ਦੀ वैल्यू f वाले ग्राफ ਦੀ at x equal to 1, वैल्यू मतलब y ਦੀ. सो x equal to 1 ਤੇ f ਤੇ ਗਏ, ਆ y ਦੀ वैल्यू कितनी है 2, 0 1 2, तो f of 1 ਦੀ वैल्यू 2 है. ऐदां ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ g1 चाहिए, तो g ਦੇ ग्राफ ਤੇ आ जाओ, आ वाला आ लिखा ना g ਦਾ ग्राफ, आ g ਦਾ ग्राफ है ਤੇ ਹੁਣ g1 किन्ना gx ਦੇ ग्राफ ਤੇ x ਦੀ वैल्यू 1, x1 अब y1 है. कैन यू सी दैट? आ g दी मैं क्लियरली मार्क करदा हूं, आ हरे वाला g है, ठीक है, ते ब्लैक वाला f है. तो x इक्वल टू 1 ते y1 है, g1 इज 1. तो आ डाटा आ गया. हुण बचा f डैश 1 ते g डैश 1. सो व्हाट इज डैश? डैश हो गया स्लोप या डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ डिफरेंशिएट ਕਰਦੇ. ना क्लियरली ये लाइन ही है, तो f डैश 1 की होगा सिंपली एस लाइन दी स्लोप, क्योंकि x इक्वल टू 1 ते टेंजेंट भी यही है ना, लाइन दी स्लोप ते हमेशा सेम रहती किसी पॉइंट ते. तो आप सिंपल एस लाइन दी स्लोप कर लिए, दैट इज गोइंग टू बी f डैश 1. और आई कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट सानू पता है, तो इतों स्लोप कर लो कि नहीं है 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0. ये पूरे लाइन की स्लोप आ गई, मतलब और हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम ही है, ठीक है? आई होप इना क्लियर है. तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू f डैश 1, दैट इज 2. g डैश 1 हुण g वाला फंक्शन आ ग्रीन है, ਉਹਦੀ 1 ਤੇ स्लोप ਇੱਥੇ, तो आ वाले पार्ट च आ वाले इत्थे मैं मार्कर मारिया, ਇਹਦੀ स्लोप कर ली बिकॉज दैट इज स्लोप एट दैट पॉइंट. तो आ पॉइंट है एक 2,0 और आ पॉइंट है 0,2. तो इन्हां दोनों पॉइंटां तो इसकी स्लोप कर लो. सो g डैश 1 इज इक्वल टू जी 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 1. ठीक है, आई होप आ गल तुहानूं समझ आई है, क्योंकि बेटे स्ट्रेट लाइन ही सीगियां ते इस करके इस पार्ट ते स्लोप जे 1 ते चाहिए या कितने भी चाहिए, स्लोप तो सेम रहनी है. जे कोई इत्थे कर्व होंदी ना, मतलब कुछ कर्व होंदी, फिर आपां नूं इक्वेशन पता होनी चाहिए सी, फिर आपां उत्थे डिफरेंशिएट करके तां करदे. ठीक है, नाउ वी सिंपली नीड टू प्लग दीज वैल्यूज. f1 is 2, g dash 1 is minus 1, g1 is 1, f dash 1 is 2. ठीक है, एंड सिमिलरली तुसीं आ वाला कैलकुलेट करो v dash 5 एंड पुट द आंसर इन द कमेंट्स. v dash 5 की है पहला v x f by g डिफरेंशिएट करो, फिर 5 ते है ना 2 3 4 5,
तो ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਿਓ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ student by mistake in writing the quotient rule of differentiation he writes this and still gets the correct answer ठीक है देखो कितना किस्मत वाला ना गलत करके भी आंसर सही आ गया चलो ਆਪਾਂ लॉजिकली सोचते हैं होया की है ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ f/g ਦਾ f/g ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिनोमिनेटर ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ डिनोमिनेटर एज सच f डैश f एज सच g डैश उन्हें की लाता उन्हें पहला आना सी g f डैश तो उन्हें आ वाली टर्म पहला लिखती आ वाली बाद च तो व्हाट ही हैज़ डन उन्हें माइनस का फर्क पाता ना तो अगर तो माइनस कॉमन कर लीए ਇਹਦੇ ਚੋਂ तो कितना आएगा माइनस ठीक है एंड जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश बाय जी स्क्वायर ठीक है आ गल समझ आई उपरों माइनस कॉमन कट के सही वाला लिख लिया वो कहता है कि स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक और उन्हें आ वाला फॉर्मूला लाया स्टिल गेट द करेक्ट आंसर ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ये जो भी आंसर आया है ये जो भी आंसर आया है आ वाला ये बराबर है करेक्ट का मतलब तभी होया भी गलत वाला ना मान लो आंसर 2 आ गया या वट एवर दैट आंसर इज तो वो आंसर ये बराबर है देयरफॉर दिस वैल्यू जो भी आ लिखी है ये बराबर होनी चाहिए ठीक है एंड इफ यू सी इथों d बाय dx ऑफ fx बाय gx ये जो उन्हें लाया that is equal to negative of this number and this number is what again this derivative correct वाला that is negative of d by dx of f by g ठीक है आई होप एनी क्लियर है तो दैट्स इट होने इधर ले जाओ है ना मतलब सॉर्ट ऑफ आ गया ना कि दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस लाइक अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा टू अल्फा इक्वल टू 0 देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 ठीक है 0 ही नंबर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ देयरफॉर ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ this d by dx of fx by gx is 0 ठीक है बस गल खत्म ਇਹਦਾ मतलब की हो गया अगर इस फंक्शन का आड़ा ग्रीन वाला टोटल फंक्शन किसी फंक्शन दी लेट्स से कोई फंक्शन है लेट्स से कैपिटल एफ एक्स उसकी डिफरेंशिएशन 0 है तो मैं की समझाया सी दैट फंक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक है ਇਹਦਾ मतलब हो गया इथों ए डिड्यूस कर लिया तुसी दिस इंप्लाइज एफ एक्स बाय जी एक्स दिस कलैक्टिवली इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक है ਇਹਦਾ मतलब एक्स की वैल्यू पूरे जो मर्जी पुट करी जो आंसर साडा सेम ही आएगा जो भी कांस्टेंट आएगा ठीक है सो आई होप इन्ना क्लियर है हुण आपां आंसर देखते हैं कि पूछता है क्वेश्चन की पूछ रहा है सो असी की वेख लिया कि असी की प्रूव कर लिया कि एफ एक्स बाय जी एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन और उन्हें एफ एक्स बाय एफ एन बाय जी एन की मान लिया कैपिटल एफ मान लिया so therefore capital fx is a constant function where n कहता कोई नेचुरल नंबर पुट कराई जाने तो पहला दूजा ते साफ हो गया तो अगर fx कांस्टेंट ही है पुत्र तो यदा मतलब x की जो मर्जी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करी जाओ ठीक है वो सारियां ते आंसर सेम ही है मतलब f ऑफ n ते जो वैल्यू है वही f ऑफ n प्लस 1 ते होनी अगर मैं कहूँ ना कि एफ एक्स इज लेट्स से कांस्टेंट लेट्स से 3 फॉर एग्जांपल तो f ऑफ 2 भी 3 है एफ ऑफ 4 भी 3 है एफ ऑफ 5 भी 3 है मतलब कुछ भी इतने एन या एक्सपोर्ट करिए आंसर तो सेम आएगा आते ऑब्वियस ही हो गया ठीक है एंड अगे की कहता है कि प्रूव दिस लेट्स सी ना की है इन्ना पता लग गया कि एफ एन इज अ कांस्टेंट तो व्हाट इज दिस इज एफ वन समेशन खोल दो लेफ्ट हैंड साइड द एफ टू प्लस एफ थ्री हाँ जी कितनी बार F20 वी टर्म और हर एक एन की वैल्यू सेम ही है सो जो भी वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू के प्लस के कितनी बार 20 बार ठीक है सो दैट इज इक्वल टू 20 टाइम के ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड आ गया ठीक है एंड आर एच एस की कहता है समेशन खोल दो हाँ जी टर्म्स ते अच्छा जो भी मर्जी विच पुट करी जाओ टर्म तो फिर 20 है और हरेक इन्हों की वैल्यू सेम है हाँ जी 1 पुट करांगे इतने कितना आ गया F1 2 पुट करोगे F3 है ना
जिन्ना मर्जी ये टोटल किन्नियां टर्म्स है बेटा, वी हैव टोटल ऑफ 20 टर्म्स 1 ਤੋਂ 20 तक, और हरेक F1 F3 F4 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ F1 F3 F5 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ Fn ਇਜ਼ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ 20 ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆंसर ਵੀ k ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ k ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ k है, therefore ये भी 20 के आंसर आ गया, भी टर्म तो आप बराबर आ गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है पुत्र, है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास चलने।